دریا ستلج کا پانی 15 دن بعد بھی نہ اتر سکا۔ جلال پور پیروالا کے درجنوں دیہات میں کئی فٹ پانی موجود۔ اہل علاقہ کہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے موٹر وے میں شگاف ڈالا جائے اور پانی کو نکاس کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دریا ستلج کا پانی 15 دن بعد بھی نہ اتر سکا۔ جلال پور پیروالا کے درجنوں دیہات میں کئی فٹ پانی موجود۔ اہل علاقہ کہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے موٹر وے میں شگاف ڈالا جائے اور پانی کا نکاس کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جائیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال تاحال برقرار۔ جہاں کبھی کشادہ سڑکیں تھیں وہاں اب پانی ہی پانی ہے اور سڑک کی موجودگی صرف پانی میں ڈوبے بورڈ سے ہی پتہ چل رہی ہے کہ یہاں کبھی سڑک بھی تھی۔ بستی لانگ پیر اولیا، بہادر پور، چند والا، کوٹلا چاکر، اڈا چوکرا سمیت درجنوں دیہات میں کئی فٹ پانی موجود ہے۔ 15 روز سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث ان علاقوں کے مکین شدید تکلیف سے دوچار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی وزراء، مقامی سیاسی قیادت اور ٹیکنیکل کمیٹی کا موقف تھا کہ موٹر وے انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں، لیکن گزشتہ 15 روز سے موٹر وے کی خاطر 30,000 سے زائد لوگوں کے قیمتی جان و مال کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ بھی ہم ہر صورت لوگوں کے املاک کو بچائیں گے، ان کی جانیں بچائیں گے، اور موٹر وے کو چاہے ہمیں توڑنا بھی پڑا تو ہم اس کو توڑ دیں گے، گیلانی ایکسپریس کو توڑ دیں گے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ جو جہاں سے پانی موٹر وے کی ٹنل سے آ رہا تھا وہ ٹنل بھی بند کر دی گئی ہیں، جو سراسر زیادتی ہے، جس کی وجہ سے پانی رکا ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی کو صرف موٹر وے نہ توڑنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ موٹر وے میں شگاف ڈال کر مشرقی آبادی کو بچایا جائے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ وقاص صدیقی، روہی، جلال پور پیروالا۔ ملتان سکھر موٹر وے مسافروں کے لیے مسلسل بند۔ ماہرین کے مطابق اس اہم شاہراہ کی بحالی میں 1 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور اگر ستلج کا پانی نکالنے کے لیے شگاف ڈالا گیا تو موٹر وے کی بندش کا دورانیہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان سکھر موٹر وے مسافروں کے لیے مسلسل بند۔ ماہرین کے مطابق اس اہم شاہراہ کی بحالی میں 1 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور اگر ستلج کا پانی نکالنے کے لیے شگاف ڈالا گیا تو موٹر وے کی بندش کا دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ جلال پور پیروالا میں ستلج کا سیلابی ریلا موٹر وے کو مسلسل متاثر کر رہا ہے۔ ٹنلز بند ہونے سے پانی کی نکاسی بھی نہیں ہو رہی اور سیلابی پانی سے موٹر وے M5 11 مقامات سے متاثر ہو چکی ہے۔ دونوں طرف کے ٹریک مختلف مقامات سے ٹوٹنے کے باعث موٹر وے کی ٹریفک کے لیے متبادل پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق سڑک کی حالت کے پیش نظر موٹر وے کو شیر شاہ سے جھانگڑا تک بند کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقے کے علاوہ باقی تمام انٹرچینجز پر ٹریفک جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال میں موٹر وے کی بحالی کے لیے 1 ماہ درکار ہوگا، اس کے بعد ہی ٹریفک رواں دواں ہو سکے گی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق ملتان سے سفر کرنے والے شہری اپنی سہولت کو مد نظر رکھیں اور شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی جانب راستہ اختیار کریں۔ حوض شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں۔ ملتان سکھر موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے قومی شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے اور اس کے پیش نظر موٹر وے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان زرعی رقبے کو پہنچا۔ پنجاب بھر میں 20 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ اراضی متاثر ہوئی۔ صرف ملتان ڈویژن میں 4.25 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ حکومت کا 26 ستمبر سے نقصانات کا سروے شروع کرنے کا فیصلہ۔ 2000 سے زائد سروے ٹیموں کی ٹریننگ شروع کر دی گئی۔ فصلوں، مکانوں سمیت دیگر نقصانات کا سروے 4 ہفتوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان زرعی رقبے کو پہنچا۔ پنجاب بھر میں 20 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ اراضی متاثر ہوئی۔ صرف ملتان ڈویژن میں 4.25 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ حکومت کا 26 ستمبر سے نقصانات کا سروے شروع کرنے کا فیصلہ۔ 2000 سے زائد سروے ٹیموں کی ٹریننگ شروع کر دی گئی۔ فصلوں، مکانوں سمیت دیگر نقصانات کا سروے 4 ہفتوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ پنجاب بھر میں حالیہ سیلاب سے 20 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ یہ بات صوبائی وزیر زراعت سید عاشق کرمانی کے زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی۔ سیکٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو سمیت دیگر اعلی افسران بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ سروے کے لیے 2200 ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور امکان ہے کہ 4 ہفتوں میں سروے مکمل ہو جائے گا۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت بھی ایک اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ 26 ستمبر سے نقصانات کے سروے کا آغاز ہوگا۔ نقصانات کی مکمل ڈیجیٹل میپنگ کی جائے گی اور ابتدائی تخمینے کے مطابق ڈویژن بھر کی 14 میں سے 11 تحصیلوں 4,81,000 ایکڑ اراضی متاثر ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا لبنہ نذیر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سروے ٹیم بن گئی ہیں اور ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ سروے میں یقینی بنایا جائے گا کہ ہر قسم کے نقصان کا درست اندراج ہو۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا کہنا ہے کہ سروے ٹیموں میں محکمہ مال، زراعت، لائف سٹاک، پاک فوج اور اربن یونٹ شامل ہوں گے۔ مکانات، فصلوں
और मवेशियों का नुकसान का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जनूबी पंजाब में हर सू तबाही की दास्तान, किसी का घर बाकी ना रहा तो कोई जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गया। कहीं तैयार फसलें मलियामेट हो गई तो कहीं कब्रिस्तान सफा हस्ती सिमट गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। हुकूमत और मुखैर अजरात की इमदाद की राह तकने लगे। जनूबी पंजाब में हर सू तबाही की दास्तान है, किसी का घर बाकी ना रहा तो कोई जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गया। कहीं तैयार फसलें मलियामेट हो गईं तो कहीं कब्रिस्तान सफाए हस्ती से मिट गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। हुकूमत और मुखैर हजरात की इमदाद की राह तकने लगे हैं। सैलाब चला गया, असरात छोड़ गया। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां अब सिर्फ मलबे के ढेर बाकी हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती मल्लाह की रौनकें खत्म, खंडर में तब्दील हो गए। 800 घरों पर मुश्तमिल गांव में सिर्फ 200 से जायद घर तबाह हो गए। बाकी बचने वाले 100 घर भी रहने के काबिल ना रहे। सैलाबी पानी ने सब खत्म कर दिया। दोबारा घर कैसे बनाएं, मुतासरीन परेशान। खैरपुर सादात कस्बा सुल्तानपुर भी सैलाब से शदीद मुतासर हुआ। मकान, खेत, मदारिस भी जद में आए। शहर का मरकजी कब्रिस्तान भी सफा हस्ती से मिट गया। मुतासरीन बेसर सामानी के आलम में इमदाद के मुंतजिर। बस्ती कहरी में भी मुतासरीन का सामान, अनाज, फर्नीचर सब खत्म। मवेशी भी जान से गए। पूरी बस्ती में एक भी घर बाकी ना बचा। मुतासरीन दर बदर। अलीपुर की बस्ती गामन भी सैलाबी रेले से कई मकानात मुनहदिम हो गए। मोहम्मद जुमैर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट जाने पर अफसुर्दा। सैलाब ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हुकूमत दादरसी करे, मोहम्मद जुबैर की अपील। नौशहरा जदीद में सैलाबी पानी उतरने पर मुतासरीन घरों को लौटे तो मंजर देखकर आबदीदा हो गए। रहने की छत नहीं रही, खेत खलियान भी उजड़ गए। जहां कभी सरसब्ज शादाब खेत लहराते थे वहां सिर्फ मिट्टी के ढेर बाकी हैं। पतन बेट वाले में सैलाब मुतासरीन के पास वसाइल खत्म, फाके करने पर मजबूर हो गए। लोधरापुर की बस्ती गौसपुर में भी 100 तबाही का मंजर। किसी घर की छत ना रही तो कहीं 4 दीवारी ईंटों का ढेर बन गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन परेशान। लुंड में भी सैलाब मुतासरीन छत से महरूम हो गए। कहते हैं 1 माह से घरों से बाहर बेसहारा बैठे हैं। घर की दीवारें तक मुनहदिम हो गई हैं। मकई, धान और तिल की फसल भी पानी में बह गई। हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। मिल गई तो रोजी, ना मिली तो रोजा। अब उसे रोजा कहें या फाका। तरंडा मोहम्मद पनाह में मिंचन बंद पर पनाह लिए हुए सैलाब जदगान के नसीब में शायद फाके ही लिखे हैं। खवातीन राशन ना मिलने पर नाला, कहती हैं कुछ नहीं मिल रहा। अक्सर बच्चे भूखे रहते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मिल गई तो रोजी, ना मिली तो रोजा। अब इससे रोजा कहें या फाका। तरंडा मोहम्मद पनाह में मिंचन बंद पर पनाह लिए हुए सैलाब जदगान के नसीब में शायद फाके ही लिखे हैं। खवातीन राशन न मिलने पर नाला, कहती हैं कुछ नहीं मिल रहा। अक्सर बच्चे भूखे रहते हैं। मिंचन बंद ने सैलाबी पानी को तो रोका ही, सैकड़ों मुतासरीन की पनाहगाह भी बन गया। तरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती मला, गफूराबाद, बस्ती मोहिब डाया और दीगर इलाकों के रिहायशी पानी से बचने के लिए मिंचन बंद पर आ पहुंचे। 3 हफ्ते हो गए अपने मवेशियों समेत जहां मुकीम हैं। कभी कोई खाना पहुंचा दे तो खा लेते हैं, वरना सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। तीगन साकू इतना आए हो साकू कई सहूलत कहीं मिली। इमे बाहर दे हम देहन राशन पानी चावल कई छोले चामदा बच्चे को देंदा। साकू कुरा राशन कई कहीं मिलिया। कुरा राशन मिले असा हर टाइम आप पकाते अपने बच्चे को खवेसू। जब कुछ मिल जाता है तो आरजी चूल्हा बनाकर इर्द गिर्द से तिनके और टहनियां जमा करते हैं, पकाकर रब का शुक्र अदा करते हैं। वरना माएं अपने बच्चों को भूखा देखती और परेशान होती रहती हैं। ॾाढी परेशानी आहे। ॿ फौजें काटता गिदे जीती जाड़े खड़े रह गए। रोटी हम मिली है वो पटवारी दी है, भावे जाए दी है साको वो कोई पता कानी। ना राशन मिले ना कोई हाथुर। गफूराबाद दा जिम्मेदार है काटा मार राशन घेनते आप कने रखे मोबाइल ते पट्टिया आ गए। असा रोंदे होनी शनासी कार्ड खाली चाहिए वेंदे पैसे नाल ईमान ते आधे पैसे कच्छा कानी गफूराबाद को मिली। मिंचन बंद पर बैठे मुतासरीन शिकवा कुना है कि हुकूमत की तरफ से जो भी राशन दिया जा रहा है वो उन तक नहीं पहुंच रहा। बाअसर अफराद मनपसंद लोगों को बांट देते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। रंगपुर में सैलाब ने एक ही खानदान के 50 अफराद को बेघर कर दिया। नसीम आई अपनी औलाद और पोते पोतियों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब ने भरे पूरे खानदान के 12 मकान जमीन बोस कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रंगपुर में सैलाब ने एक ही खानदान के 50 अफराद को बेघर कर दिया। नसीम आई अपनी औलाद और पोते पोतियों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सैलाब ने भरे पूरे खानदान के 12 मकान जमीन बोस कर दिए हैं।
रंगपुर की बस्ती जाड़ियांवाला में दो दरियाओं ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि एक ही फैमिली के 12 घर मलियामेट हो गए। आशाने उजड़ने से नसीम माई समेत खानदान के 50 अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। नसीम माई का कहना है कि सैलाब आया तो वो अपने बच्चों को लेकर रेस्क्यू कश्तियों में निकल गए। वापस आए तो सिर्फ उनकी जानें और चंद जानवर बचे हैं। घर और फसलें सैलाब निकल गया। जदन सैलाब आ गया साड़ी कोई शाय नहीं रही। असा आप बच्चे मेरा 50 बच्चा है, मैं लाए के किन्ने लांजा ते ला के निकल गईयां। उवे बच्चे बचे हैं या 2-4 ढोर बचे हैं। भाई साड़ी कोई शाय नहीं बची। मकान गिर गए, वाइयां वग गई, धान कमादान बनवाड़न हर शाय साड़ी खत्म हो गई है। नसीम बीबी का कहना था कि सैलाब ने उनके 12 घर तबाह कर दिए हैं। अब वो अपनी औलाद और पोते पोतियों को लिए घरों के मलबे पर बैठे हैं। बच्चों का सर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं। तमाम उम्र की जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदुम भी सैलाब की नजर हो गई। सर्दियां आने वाली हैं, यही सोचकर परेशानी बढ़ती जा रही है। साढ़े की 12 घर हैं, 12.5 ਦੇ 12 लुड़ गए। साढ़े पल्ले कोई शाय नहीं होना। सा उन्होंने कोठियां उता खड़े करा या कुछ असा आसरा करा। साड़ी अपनी तबीयत हुण घट गई है, ताकत ही मुक गई है। साढ़े नाल मेहरबानी होई वने। सैलाब मुतासरा नसीम माई ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी फौरी बहाली के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। सैलाब में मकान, फसलें, घरेलू सामान तो गया, गरीब को इससे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि बेटियों के लिए बनाया गया जहेज भी सैलाब में बह गया। अब अपनी गुड़िया को पिया घर कैसे रुखसत करेंगे? बेबस वालिदैन के पास सवाए गम और आंसुओं के कुछ न बचा। जिला खानेवाल में सैलाब ने कई देहात और बस्तियां उजाड़ दी। मौजा फाजिल शाह की बस्ती टाहलीवाला के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद नवाब का घर भी सैलाबी पानी की नजर हो गया। बेटी की शादी के लिए तैयार किया गया जहेज भी बेरहम मौजें बहा ले गईं। मोहम्मद नवाब का कहना है कि कैंप से वापस घर लौटे तो सिवाय मलबे के कुछ न मिला। शादी जी रखी है चांदी 14 दी मुड़ फ्लड पै गया। फ्लड दे पवन दे विच जी हुण की कर सकदे आ, लुड़ गई हर दा। हुण मैं यूं कई इच्छा मिले तां बच्ची तो मैं तंग कीती खड़े निकले। तुसां हुण मैं क्या कर सकना जी, मेरी कोई मदद कीती जावे जी। मोहम्मद नवाब का बेटा कहता है कि सैलाब ने फसल भी तबाह कर दी। बहन के जहेज का सामान भी सैलाब की नजर हो गया। इंतजामिया ने ख्यामा तक नहीं दिया। जहेज इकट्ठा किया जी, बच्ची दी शादी करने बहन शेरा छुएर दी जी, वो सब कुछ तो नीलाम हो गया जी। हुण बच्ची दी शादी नहीं किवें कर सकी है? कोई इमदाद मिले तो फिर तो कर सकते हैं, नहीं तो परेशान है बहुत सारे जी। उधर लुडन के इलाका मोडेड हिठार में एक परेशान हाल माँ बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। उसकी 2 बेटियों का जहेज भी सैलाब की नजर हो गया। सारा जहाज तैयार आया, पानी तो एक बारी आया तो सारा बुड़ गया। ये कोई आदे मेहरबानी करो चाहता, बड़ा एहसान है तुहाडा। अम्मा किहड़ा समान विच लुड़ा है, तफसील नाल दस्सिया है। पेटियां हन, रजाइयां हन, बंड बुंडे हन, कोई एक मशीन आई हथ वाली सिलाई वाली, ते गदेले हन, 2 मंजे हन, 2 मजनू हन। इस तरह नाल मंडी जिवें दियां वाली बई हुंदी है उवें बनाई बैठी आसे ते ओह आदा लगेगा। नहर ते बैठी होए हां, 4 बच्चियां दी शादी करनी आई ते ओह आदा मंडी जड़ी है ओह लगी गई। हुण कोई नहीं शाह है भाई जिस दे असा हाल करिए बनाविए, मेहरबानी करो चा। सैलाब से मुतासरा खानदान अब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुखैर हजरात के साथ साथ हुकूमत पंजाब के इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल शाकिर के हमरा नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। सैलाब ने एक और खानदान को बेसहारा कर दिया। कबीरवाला के चक नंबर 6D में बेवा खातून दरबदर अपना घर भी गया। रिश्तेदारों के जिस घर में पनाह ली वो भी सैलाब की नजर हो गया। मेहनतकश खातून वक्त इमदाद की राह तक रहा है। टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ मलबा और इससे ज्यादा बिखरी हुई मुतासरीन की जिंदगी। दरियाए रावी ने कबीरवाला में कई बस्तियां उजाड़ दी और कोई सहारा देने वाला भी नहीं। सारे मेरे घर गिर गए, मेरी 4 दीवार गिर गई, मेरा कोई जरिया नहीं, कोई दिहाड़ी दप्पा ही नहीं, ना मेरे तो बेटा है, मैनू ना हुकूमत मैनू मकान कि कोई खड़ा करते दे दे। सैलाब से एक बेवा खातून का घर भी मुकम्मल तबाह हो गया। रिश्तेदारों के घर में पनाह ली लेकिन वो भी सैलाबी पानी से गिर गया। बेवा खातून और उसके माजूर बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
एक मजूब बच्ची मंजी ते पई 2 बच्चे जवान मजूब हैं कमले सियाने उन्होंने पता नहीं असी देखी दिया 4 दीवारी मकान विच समान साडे दब्बे पैन ओ अग्गू पानी है जाते देखो। सैलाब मुतासरीन इस इंतजार में है कि हुकूमत और साहिब हैसियत अफराद आगे बढ़कर उनका सहारा बने। मैन हामिद रजा के हमरा बशीर काजमी रोही कबीरवाला। सैलाब के बाद जब किसी ने सहारा ना दिया और जिंदगी अल्लाह के आसरे पर गुजरने लगी तो अल्लाह का घर ही एक खानदान और उसके अहले खाना के सर छुपाने को मुयस्सर आया। लोधरा के इलाके टिब्बी घलवा में अल्लाह के घर ने सैलाब मुतासरीन पनाह दी। सैलाब मुतासरीन मस्जिद में पनाह गुज़ीन खानदान बेबसी और लाचारगी की कहानी बयान कर रहा है। सैलाब ने जलालपुर पीरवाला के मौजा गुज में तबाही मचा दी। घर सैलाब की नजर होने पर एक खानदान पनाह की तलाश में हिजरत करके लोधरा पहुंच गया। अपने खानदान समेत पनाह की तलाश में परेशान खातून सफिया बेगम का कहना है लोधरा पहुंचे तो यहाँ भी सैलाब था। इस छोटी सी मस्जिद में जगह मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सामान रख दिया। यहाँ के लोग खाना दे जाते हैं तो खा लेते हैं और ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। घर जाए गए सारे वाइन देखो चीरे पे हाली पानी वादा पे अजल तक रात ही रस आदन पानी वाहो के हाली भी टुरदा पे कैसा कहीं हाली बस सोन एरिया आज देखा कल आए कोई देगे भाजी पड़े कने अन भाई देगे नहीं था कर। सफिया खातून और इसके खानदान समेत सैकड़ों ऐसे किरदार सैलाबी तबाही का शिकार होकर किसी मदद के इंतजार में बैठे हैं। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ रोही लोधरा। सख्त जमीन का सीना चीरकर फसल उगाने वाले काश्तकार खुद भी सख्त जान हैं। हालिया सैलाब फसलें बहा कर ले गया, कर्जा भी चढ़ गया, मगर काश्तकारों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सैलाब का पानी उतरते ही जानवरों के लिए चारे की काश्त का आगाज कर दिया। सैलाब से तबाह हाल किसानों ने फिर से फसल काश्त करने के लिए कमर कस ली। उज शरीफ के नवाही इलाकों बेट अहमद, कच्ची लाल, बेला झलन, चक कहल, कच्ची शुक्रानी, मखन बेला, बेट बुख्तियारी में चावल, धान, मूंगी, तिल, कपास, गन्ना और चारे की फसलें सैलाब की नजर हो गई। सैलाब के बाइस जहां इंसानों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है वहीं जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। जानवरों को भूख से निढाल देखकर किसानों ने पानी खुश्क होते ही हिम्मत करके चारे की काश्त शुरू कर दी। काश्तकारों का कहना है कि अभी पिछली फसल का कर्ज नहीं उतरा, सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया है। अब जमीनों से जैसे जैसे पानी खुश्क हो रहा है उन्होंने काश्त का आगाज कर दिया है। अभी चारा काश्त किया है ताकि जानवरों को भूख से बचाया जा सके। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਮੂੰਗੀ ਤਿਲ ਧਾਨ ਗੰਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੈਲਾਬ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਲੇ ਥੀ ਆਏ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੇ हुकूमत वक्त को अपील करे सो सारे जरी कर्जे माफ करें। बाहिम्मत किसान जैसे सख्त जमीन का सीना चीर कर इसे काश्त के काबिल बनाता है वैसे ही वो आजकल सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके ज़रूरी कर्जे माफ करके रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि वो दोबारा फसल काश्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन रोही उच्च शरीफ। सैलाब में जहां लाखों लोग बेघर हुए साथ उनके मवेशी भी महफूज इलाकों तक मुंतकिल करने पड़े जिससे गवालों का कारोबार ठप होकर रह गया। अब मुतासरीन की वापसी के साथ ही 2 हफ्तों के बाद गवालों का कारोबार भी जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। जबलपुर के सैलाबज़दा इलाकों से मवेशियों के इनखला के बाइस गवालों का कारोबार भी शदीद मुतासर हुआ। 2 हफ्तों के बाद सैलाब मुतासरीन का मवेशियों के साथ आबाई घरों को वापसी के साथ ही गवालों ने भी दोबारा दूध इकट्ठा करने के लिए बाकिरपुर का रुख कर लिया। गवालों का कहना है कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल और बेरोजगारी पहले कभी नहीं देखी। पहले भजन 100 किलो ले जाते थे अब तकरीबन 1 मन ले जाते हैं बस। अब जो है ना वो पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। 600 का पेट्रोल डलवाते हूँ 800 से आता हूँ मैं जो अब यहाँ से लेके जाता हूँ 400 बचता है 500 मन में से बस गुजारा मुश्किल सा हो रहा है। एक गवाला का कहना था कि सैलाब से कब 100 किलो दूध की कलेक्शन थी अब सिर्फ 40 किलो रह गई। अभी तक सैलाबज़दा इलाकों में मवेशी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लौटे। भाई इन भाइयों को ख्याल करें ये रास्ते टूट गए हैं सड़ गए ये बनवा दें और इनका भी कोई ख्याल करें चारा वगैरह नहीं है। हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। गवालों का ये शिकवा अपनी जगह दूध कम इकट्ठा हो रहा है। मवेशी पाल हजरात कहते हैं कि मवेशियों का मुनासिब और वाफिर चारा ही नहीं मिल रहा पूरा दूध कैसे दें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधाना रोही भावलपुर। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही सरगर्मियां जारी हैं। कहीं मुतासरीन को अपने खैमे रोशन और हवादार रखने के लिए सोलर प्लेट्स पंखे और LED बल्ब दिए जा रहे हैं, कहीं खुश्क राशन फ्राहम किया जा रहा है और कोई डॉक्टर्स की टीम के हमरा बीमार मुतासरीन के इलाज में मसरूफ है। हर कोई अपने दुखी भाइयों के दर्द का मदावा करने की कोशिश में जुटा हुआ है।
जलालपुर पीरवाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुतासरीन की खिदमत के लिए पेश 300 सैलाब मुतासरीन में सोलर प्लेट्स, पंखे, सिलेंडर, चूल्हे और दीगर बरकी आलात बतौर तोहफा तकसीम किए गए। सैलाब मुतासरीन अपनी बहाली के वक्त ये सामान अपने साथ लेकर जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेड पाकिस्तान भी पेश लियाकतपुर में इंतजामिया के इश्तराक से रेड पाकिस्तान की जानिब से 100 से जायद सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया, जिसमें चावल, ऑयल, दालें, आटा, आलू, प्याज और दीगर अशिया शामिल थी। चिश्तिया में एमएन एहसानुल हक बाजवा की जानिब से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मुतासरीन की बहाली में मदद की जाएगी। लोधरा में डीपीओ अली बिन तारिक की जेर निगरानी मुंशी वाला आदम वाहन में सैलाब मुतासरीन में आटा, घी, चीनी, दालों पर मुश्तमिल राशन तकसीम किया। तहसील कहरोट बक्का में मुस्लिम मेडिकल मिशन ने खिदमत इंसानियत के जज्बे के साथ नवाही गांव बस्ती भाभा में फ्री मेडिकल कैंप लगाया और सैकड़ों मुतासरीन के मुआयने के साथ मुफ्त दवाइयां भी फराहम की। तरंडा मोहम्मद पनाह के सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए फलाही तंजीम का एक्शन इक़दाम। गुल मोहम्मद लंगा में चाइल्ड फ्रेंड स्पेस के नाम से प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद सैलाब की तबाहकारियों से खौफजदा बच्चों की चेहरों पर रौनक लाना था। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाके गुल मोहम्मद लंगा में फलाही तंजीम ने फ्लड रिलीफ कैंप में रिहायश पजीर बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस प्रोग्राम का इनाकाद किया। प्रोग्राम में फीमेल ट्रेनर बच्चों में घुल मिल गई, बच्चों को मुख्तलिफ सरगर्मियां सिखाई। बच्चों ने भी मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर खूब इंजॉय किया। फीमेल ट्रेनर का कहना था, बच्चे प्रोग्राम में आए तो मायूस थे, लेकिन अब सबके चेहरों पर रौनक है। एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें सैलाब से मुतासिर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सारे जमा हैं और उनके साथ मुख्तलिफ खेल खेले जा रहे हैं, उनके साथ एक्टिविटीज की जा रही हैं। वो रंगों के जरिए अपनी ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर जो जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है, उस परेशानी को कम कर सकें और रंग कर सके, खेल खेल सके, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार सके। प्रोग्राम में बच्चों ने पेंटिंग बनाना सीखी, मुख्तलिफ खेल खेले गए। प्रोग्राम का मकसद बच्चों की जहनी नशोनुमा में बेहतरी लाना और परेशानी कम करना था। मैंने पाकिस्तान का झंडा बनाया है और फूल बनाया है और ये दिल बनाया है। सैलाबज़दा बच्चों को अच्छा माहौल और मुस्बत सरगर्मियां फराहम करना परेशान हाल बच्चों की जहनी नशोनुमा में बेहतरी लाने का बेहतरीन तरीका है। इससे बच्चों की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। उधर हासिलपुर में गंदुम माफिया सरगर्म हो गया। गंदुम का सरकारी रेट 3000 रुपए फी मन मुकर्रर। हासिलपुर की मार्केट में 32 से 3400 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं। हासिलपुर में गंदुम माफिया सरगर्म हो गया। गंदुम का सरकारी रेट 3000 रुपए फी मन मुकर्रर। हासिलपुर की मार्केट में 32 से 3400 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। शहरियों का जखीरांदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमती नुमाइंदों की अदम तवज्जो या महकमे तालीम की नाअहली। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज दोकोटा को 5 साल बाद भी फंक्शनल न किया जा सका, जबकि कॉलेज की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। तालीम के हुसूल में बच्चियों को मुश्किलात का सामना है। मेलसी से देखते हैं अब्दुल समद चौधरी की ये रिपोर्ट। के इलाका दोकोटा में बच्चियों के लिए तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज को 5 साल बाद भी फंक्शनल न किया जा सका, जबकि कॉलेज की बिल्डिंग भूत बंगला का मंजर पेश करने लगी। 5 साल पहले दोकोटा में 25 करोड़ की ग्रांट से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया था, मगर हुकूमती नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस गर्ल्स कॉलेज को ताहाल फंक्शनल न किया जा सका, जिसके बायस बच्चियों को हुसूल तालीम के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेना पड़ता है या रोजाना की बुनियाद पर 40 किलोमीटर सफर करके मेलसी जाना पड़ता है। यही वजह है कि ज्यादातर बच्चियां तालीम हासिल करने से कासिर हैं। ये 20 करोड़ लागत से स्टार्ट किया गया था, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। 95% इसका काम मुकम्मल है, मुख्य रहता है जिसके अंदर कुछ पेंट्स वगैरह, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई फंड्स नहीं जारी किए जा रहे, जिसकी वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर कॉलेज में क्लासेस का आगाज करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस के कम किराए और जदीद सफरी सहूलियात के बाद शहरियों ने बसों, वैगनों, रिक्शों से मुंह मोड़ लिया। ट्रांसपोर्ट मालकान और ड्राइवर परेशानी का शिकार हैं। उनका कारोबार दिन ब दिन मुतासिर होने लगा। सरगोदा से साहिवाल का किराया जो पहले आम ट्रांसपोर्ट पर 180 रुपए था, वो अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के जरिए सिर्फ 70 रुपए रह गया है। कम किरायों और जदीद सहूलतों की वजह से शहरी बड़ी तादाद में ग्रीन बस में सफर को तरजीह दे रहे हैं, जिसके नतीजे में आम ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों की तादाद तेजी से कम हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी करना पड़ेंगी और ड्राइवर भी बेरोजगार हो जाएंगे।
یہ گاڑیاں جی بیچارے خالی جا رہے ہیں اور خالی آ رہے ہیں ادھر سیلا والی سے، تو اپنا اڈے بہت زیادہ ہیں اور لوگ جو سا کرائے کے متعلقہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کرایہ آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں ان گاڑیوں کے۔ شہریوں کے لیے گرین الیکٹرک بسیں خوشائند قدم ہیں، تاہم عام ٹرانسپورٹرز کے خدشات بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ اگر کوئی متبادل حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ شیخ عثمان، روہی، سرگودا۔